Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. Welcome to the lecture of Power System Operation and Control. Myself, Professor Gaurang C. Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. So, students, today we are going to discuss about the chapter number 3, that is reactive power and voltage control. And in this lecture session, we will discuss this topic, that is operation of transmission line under heavy loading condition. Okay, so whenever there is a heavy loading condition in transmission line, what will be the effect of this condition on the transmission line, we will see it. So let we will begin this lecture. We will start our theory, that is the operation of a transmission line under heavy loading condition. Okay, in previous theory what we have seen that we have seen that what is the condition of transmission line under no load condition. Now this is the different theory, that is this is the theory regarding the heavy loading condition, and you can see it is asked number of times in GTU examination. So please, when you prepare for the examination, take this question or consider this question, because it has been asked I think 3 or 4 times in previous years. Okay, so we will start with this theory, what happened when heavy loading condition in the transmission line. Okay, so we will start with our basic equation first of all. Okay, so there is a mathematical equation of voltage and current at any point x on the transmission line from the sending end is given as. So these are the two equations for voltage and current is given over here, एंड दिस इक्वेशन यहाँ पे ये इक्वेशन हमें एट पॉइंट एक्स के रिगार्डिंग दिए गए हैं कि भाई एक प्रॉपर एक ट्रांसमिशन लाइन आपकी है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन में कहीं भी आप अगर एक पॉइंट एक्स कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट कितना होगा. Okay, so this is the normal equation that we know from beginning of this chapter, that is for the we are considering generally what that is v cos phi plus j sin phi. Okay, so in place of v cos phi into j sin phi, what we are over here considering, we are considering v cos beta L minus x plus j z0 ir sin beta L minus x. Okay, so ये जो इक्वेशन है that is given, that is इक्वेशन नंबर 46. ये जो दिया गया है वो आपको वोल्टेज के लिए दिया गया है. ओके, सो फॉर वोल्टेज यू आर कंसिडरिंग आपका जो ये एक्टिव पावर आप कंसिडर कर सकते हैं v cos बीटा इंटू एल माइनस एक्स प्लस जे जेड जीरो आई आर इंटू साइन बीटा इंटू एल माइनस एक्स. ये जो जे वाली टर्म है दैट इज योर इमेजिनरी टर्म एंड दिस इज योर रियल टर्म that you can be consider. Okay, now if you further you can see that is the current is given over here. Okay, in equation 47 there is a current is given over here. So for current what they are taking place, we are taking place normally I cos phi plus j sin phi. Okay, so for here in place of that we are taking ir cos beta into L minus x plus j into v by z0 into sin beta L minus x. So similarly over here this is your imaginary part for the current. Okay, and ये जो L minus x that is for the transmission line length, और minus x दिया हुआ है क्योंकि आप कोई भी transmission line पे लाइन की जो भी लेंथ है उसमें कोई भी एक पॉइंट x कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल ट्रांसमिशन लाइन लेंथ माइनस
जो पॉइंट x तक की जो लेंथ होगी वो, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडरिंग एज a l minus x. So students, these two equations we have to keep in mind when considering this theory. The first, that is for the given voltage and for the given current. So two equation we are considering over here for the 46, equation number 46 and 40. Okay, so now if we go further, now over here, as we proceed this theory, I will just make it like that. Okay, so over here this equation, that is putting I is equal to P minus jq by V and taking x is equal to 0, the sending end voltage is given as E is equal to V cos theta plus jz0 sin theta into P minus jqv. Okay, now how that will come? We are considering over here the total power. Normally what is the power equation of power? That is P is equal to Vi plus jq. Okay, आपका पावर का जो इक्वेशन है वो क्या है? टोटल पावर P इज इक्वल टू वी आई प्लस जे क्यू. उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है और इन टर्म्स ऑफ करंट लिखा है, तो ये जो V जो है वो उसके नीचे आ जाएगा और जे क्यू आपका माइनस में चला जाएगा. तो आपका टोटल करंट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट? I इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू बाई वी. ओके, सो I इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू बाई वी. यहाँ पे आपने ये इक्वेशन कंसिडर कर लिया. नाउ एंड टेकिंग x इज इक्वल टू 0, the sending end voltage. So putting I is equal to P minus jq by V. ये कैसे आ गया? हमने देखा कि भाई हमने टोटल पावर का इक्वेशन को मॉडिफाई करके उसको इन फॉर्म ऑफ करंट यहाँ पे लिया है. और now this equation we are considering for the current I. Now this is the sending end voltage is given as E is equal to V cos theta plus jz0 sin theta P minus jq by V. अब हमने जो ये करंट वोल्टेज यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है Vx, उसको हम सेंडिंग एंड वोल्टेज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो उसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं कि भाई आपका जो करंट का वैल्यू है या जो हमने यहाँ पे डिराइव किया करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू बाई वी, उसको हम इस इक्वेशन में यहाँ पे I की जगह पे लिख रहे हैं. ओके, सो इन प्लेस ऑफ दैट, for when you consider the sending end voltage E, that you can write down that is V cos theta plus jz0 sin theta और I की जगह पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे P minus jq by V. Okay, so that is your equation number 48. So आपका sending end voltage यहाँ पे क्या हो गया? That is E is equal to V cos theta plus jz0 sin theta into P minus jq by V. Now what is the condition given? That is where beta into L minus x is equal to 0. हमने यहाँ पे रिसीविंग एंड, ये अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लॉसलेस कंसिडर कर रहे थे, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी अजम्पशन क्या लिया हुआ है कि भाई वेयर बीटा इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो योर रिसीविंग एंड करंट इज इक्वल टू योर टोटल करंट. जो भी आपका करंट रिसीविंग एंड करंट पे कितना करंट आ रहा है, जो आपका टोटल करंट फ्लो रहा है उतना आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये 0 कंसिडर किया हुआ है इसलिए. ओके, सो योर रिसीविंग एंड करंट इज इक्वल टू आई. नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये जो 48 है, ओके, इक्वेशन नंबर 48 को सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ सिंप्लीफाई द इक्वेशन 48 फॉर रिसीविंग एंड वोल्टेज. We will get this equation, that is V is equal to E plus or minus root of E square minus J2 Z0 sin 2 theta into P minus JQ divided by 2 cos theta. So equation 48 से हमारा equation 49 आ रहा है. ओके, now ये equation हमने कैसे simplify किया? I will just show you. In book it is given directly, but I will just derive it for you. So student, if you when you prepare this theory, you can also write down, if you want to write down directly this equation if you understood, and if you don't, and if you want to derive this, you can help with this. Okay, you can take the help of with this derivation. Okay, now यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है कि भाई E जो है हमारा, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ये वाला यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, E इज इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस jz0 sin थीटा इंटू पी माइनस जे क्यू बाई वी. ओके, नाउ ये इक्वेशन यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि भाई E इज इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस jz0 sin थीटा इंटू पी माइनस जे क्यू बाई वी.
Okay, now what I'm doing, I'm just multiplying this equation with voltage V. Okay, so when you multiplying this equation with voltage V, you will get over here VE into ये V का क्या हो गया आपका V स्क्वायर. सो V स्क्वायर cos थीटा प्लस JZ0 sin थीटा P माइनस JQ. ये V, ये जो नीचे का V है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा. ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया है. तो आपका इक्वेशन ये वाला कुछ इस तरह से हो गया, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस JZ0 साइन थीटा P माइनस JQ. अब मैंने क्या किया है कि ये जो VE है उसको इस साइड से इस तरफ ले लिया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस JZ0 साइन थीटा इंटू P माइनस JQ माइनस V. Okay, now students, if you remember, to finding out the roots, we have one equation, that is x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay, तो उसके लिए इस इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई एक x की वैल्यू चाहिए, एक a की वैल्यू चाहिए, एक b और c. सो a b c एंड x की वैल्यू हमें चाहिए. ये इक्वेशन यहाँ पे, ये इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ. ये इक्वेशन जो है, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी. ओके, सो नाउ योर इक्वेशन इफ इन दिस फॉर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी, तो आप यहाँ पे ये रूट का इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है. तो हमारा जो मेन इक्वेशन ये वाला है उसको मैंने रीअरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी. तो उसको अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया भाई, वी स्क्वायर कॉस थीटा, अब वो आपका ए टर्म हो गया जहाँ पे आपका जो एक्स है वो है आपका वी स्क्वायर. फिर आपका बी टर्म है वो है यहाँ पे वी, यहाँ पे आपका एक्स टर्म जो मैंने आपको बताया दैट इज द वी, और C के लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा, JZ0 साइन थीटा P माइनस JQ. तो आपका ये इक्वेशन अब एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया है. नाउ यू कैन just put this value of a. What is the value of a? That is the cos theta. What is the value of b? That is your minus ve. And what is the value of c? That is JZ0 sin theta P minus JQ. तो इस वैल्यूज को अगर आप इसमें रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, सो ये सब वैल्यूज मैंने सिर्फ इस इक्वेशन में पुट डाउन की है. जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली समझ जाएंगे कि भाई b की जगह पे यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया है, दैट इज ई स्क्वायर माइनस ये 4 cos थीटा JZ0 sin थीटा माइनस P JQ. ओके, ये वाला आपका ये इक्वेशन पूरा यहाँ पे आ जाएगा. ओके, a और c की जगह पे ये सब वैल्यूज आप पुट डाउन कर दीजिए. अब आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा. ओके, यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, ये वाला जो 2a है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है cos थीटा, वो मैं लिखना यहाँ पे, आई थिंक सो इट्स बाय मिस्टेक ये रह गया है. ओके, सो आप जब इक्वेशन डिराइव करें यहाँ पे डिवाइडेड बाय दिस 2 cos थीटा प्लीज लिख दीजिएगा. ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर one more equation, it is a from one more simplification. You can see that if cos theta into sin theta, we can say that is cos theta into sin theta is equal to sin 2 theta by 2. Okay, now for cos theta into sin theta is equal to sin 2 theta by 2. You can see over here. So this equation ये रहा आपका cos theta into sin theta. So इसको हम अगर further simplification करेंगे इस फॉर्म में से इस फॉर्म में लाने के बाद आपका इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू ई प्लस और माइनस रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस J2Z0 साइन 2 थीटा इंटू P माइनस JQ डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा. सो दिस इज द इक्वेशन यू कैन सी ओवर हियर. व्हाट इक्वेशन वी विल गेट, v इज इक्वल टू ई प्लस और माइनस रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस J2Z0 साइन 2 थीटा into P minus JQ divided by 2 cos theta. Look students, this is the equation that we are given as an equation number 49 in the book, and this is the equation that we derived from this for this theory. Okay, so I hope ये आपको अब अच्छी तरह से understanding हो गया होगा. Okay, so now after getting this equation we can move or we can get towards our theory. So from getting this equation 49, that is your receiving end voltage, that is equal to E plus or minus
रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस जे टू जेड जीरो साइन टू टूटा इंटू पी माइनस जे क्यू डिवाइड बाई टू का स्टेटा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि भाई रिसीविंग एंड वोल्टेज में टू पॉसिबिलिटीज है। ओके, आइदर इट इज अ पॉजिटिव और आइदर इट इज अ पॉजिटिव, प्लस और माइनस में आपको ये इक्वेशन मिल रहा है। तो टू पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन बी से दैट। ओके, नाउ from the above equation 41 we can easily say that the receiving end voltage depends on थ्री पैरामीटर्स मेनली। ओके, आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है और वो कौन से थ्री पैरामीटर पे डिपेंड करता है? ओके, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लोड, ओके, पावर फैक्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन लेंथ। अब इस इक्वेशन पे आपको क्या पता चल जाएगा? बट ऑब्वियस चीज है कि भाई आपका जो आप जो रिसीविंग एंड में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। बट ऑब्वियस चीज़ है ये कि भाई आपका लोड क्या है वो, ओके, आपका पावर फैक्टर क्या है पावर सिस्टम का, ट्रांसमिशन लाइन का उस पे, और आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है। ओके, हाउ इट विल बी अफेक्टेड वी विल सी इन द थियरी एज वेल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ वी कंसिडर द केस वन ओवर हियर। ओके, कि भाई आपका लोड क्या इफेक्ट करता है, आपका पावर फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, आपका ट्रांसमिशन लाइन लेंथ क्या इफेक्ट करता है, आप जो रिसीव कर रहे हैं वोल्टेज उस पे। तो इन फर्स्ट केस वी कैन सी, now if we take the simulation of 350 kilometer long transmission line, then after the simulation results we can plot the graph between receiving end voltage and active power at different ranges of the power factor value, then the graph is shown like that. Okay, so student यहाँ पे क्या किया गया है, you can see, you can read this statement, that is हमने एक 350 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सिमुलेशन किया। एक बाई 350 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपको दी गई है, उसका सिमुलेशन किया है, और उस पे आपने आप कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए हैं कि भाई आपके ट्रांसमिशन लाइन की सबसे पहले तो लेंथ कितनी है वो, ओके, वो कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज गिवन इन पीयू। ओके, और आपका रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कितना आ रहा है। ओके, सो ये दोनों पैरामीटर कौन से पावर फैक्टर पे, डिफरेंट पावर फैक्टर पे आपका पावर और वोल्टेज का क्या कंडीशन है, ये हमने इस ग्राफ में दिखाया है। ओके, सो विच पैरामीटर्स वी आर सेइंग दैट we can plot the graph between receiving end voltage, okay, that is your receiving end voltage, you can see on the this axis, on x axis you can see this is your receiving end voltage, and after that, that is your active power. On y axis you can see over here, this is your active power, you can see the cursor, okay, for this graph you can see the cursor over here, so this is your active power. So हमने क्या प्लॉट किया है? हमने प्लॉट किया है रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड एक्टिव पावर, बट एट डिफरेंट रेंजेस ऑफ पावर फैक्टर, डिफरेंट रेंजेस ऑफ पावर फैक्टर। ये आपने यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है? डिफरेंट रेंजेस कंसिडर की हुई है पावर फैक्टर के। पहला हमने 0.9 अपना पावर फैक्टर जो ट्रांसमिशन लाइन का है, दैट वी आर कंसिडरिंग, दैट इज आवर पावर फैक्टर इज 0.9 लैगिंग, then 0.95 lagging, then we again consider that is a unity power factor we are considering over here, then we are going for the leading power factor, and then we are going for the 0.95 leading power factor. So इस सब में क्या आ रहा है हमें यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट। ओके स्टूडेंट, सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई डिफरेंट पावर फैक्टर पे आपका पावर और वोल्टेज का क्या सिचुएशन है। ओके, सो नाउ वी कैन सी ओवर हियर this this is your voltage in pu that is given over here। okay, 1 pu का आपका वोल्टेज आप कंसीडर करेंगे, तो आप इस ग्राफ पे से आपको पता चलेगा कि भाई जब 1 pu का वोल्टेज आपको रिसीविंग एंड में मिल रहा है, ओके, तो अगर आपका 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग है तो आप मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर कर रहे हैं? यू कैन सी दिस इज द पावर यू कैन ट्रांसफर अप टू द पॉइंट और नियरली 0.2 पीयू, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, दैट इज योर क्रिटिकल वोल्टेज। ओके, दिस इज योर क्रिटिकल वोल्टेज पॉइंट। सो अप टू दैट वोल्टेज यू कैन सी द चेंजेस विल गोइंग टू बी हैपन, और आपका जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो भी आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है। आप
देख रहे हैं ये 0.9 लैगिंग पे आपका वोल्टेज प्रोफाइल कैसा है, इट इज कर्व प्रोफाइल, इट इज अ नॉन लीनियर प्रोफाइल। ओके, सो लैगिंग पावर फैक्टर पे आपकी क्या इफेक्ट आ रही है रिसीविंग एंड वोल्टेज में, इट इज, हाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए कि भाई आपका जो भी पावर फैक्टर है उस पर रिसीविंग एंड वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर में। यू कैन सी दिस इज एट द यूनिटी पावर फैक्टर की ये जो लाइन दी हुई है इस ग्राफ में, यू कैन सी ओवर हियर एट द यूनिटी पावर फैक्टर क्या है, ये जो लाइन है इट इज समवट फ्लैट, दैट मीन्स अप टू द पॉइंट 4 pu पावर ट्रांसमिशन, यू कैन सी ओवर हियर आपका जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो दिया गया है यहाँ पे, तो वो आपको फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है किस पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। ओके, सो रिसीविंग एंड वोल्टेज पे आपका वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। उसी के अगेंस्ट में अगर आप दूसरे पावर फैक्टर पे जब आप उसका ग्राफ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.9 लेगिंग पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज प्रोफाइल, ओके दैट इज नॉट गुड फॉर द पावर सिस्टम। एट 0.95 lagging it is also a fluctuation of voltage, okay, and this point is known as your critical voltage point। okay, and one more point you can see at 0.95 पावर फैक्टर लीडिंग, अगर आपका लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पे है तो क्या है कि भाई आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो 1 pu से थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओके, अगर लीडिंग पावर फैक्टर दैट मीन्स, और उसमें क्या कंसिडर होगा लीडिंग पावर फैक्टर, दैट मीन्स you are you are sending the, or you आप एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग द रिएक्टिव पावर इन द ट्रांसमिशन लाइन, सो उसकी वजह से आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा हाई आपको दिख रहा है। देखिए ये 0.95 पावर फैक्टर लीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रिएक्टिव पावर आप जनरेट करके ट्रांसमिशन लाइन में सेंड करें तो आपका कुछ वोल्टेज प्रोफाइल इस तरह से मिलेगा आपको। सो बेस्ट आपका पावर फैक्टर का जो प्रोफाइल है दैट इज व्हाट, दैट इज एट द यूनिटी पावर फैक्टर, उसमें ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक आपको फ्लैट प्रोफाइल मिलेगा 1 pu का। ओके, सो आवर ट्रांसमिशन लाइन नीड्स द, that graph suggests that our transmission line needs the unity power factor, at unity power factor we can transfer our maximum power at the balance voltage। okay, and so that's how that is reliability can be increased at the unity power factor। so power factor हमारा जो पहला जो पॉइंट था, ये जो पावर फैक्टर वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है वो हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि भाई आपका पावर फैक्टर अगर यूनिटी होगा तो आपका वोल्टेज प्रोफाइल भी बैलेंस रहेगा और ट्रांसमिशन लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगर थोड़ा सा लेगिंग होगा तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे और आपका जो पावर फ्लो है वो भी कम होगा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज पे। ओके, नाउ फर्दर वी कैन सी ओवर हियर, so from the equation we can see that for any value of power flow in the system देर आर टू पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ रिसीविंग वोल्टेज। हमने जो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया गया है, ये इक्वेशन की हम बात करें कि उस पर टू पॉसिबिलिटीज है फॉर द रिसीविंग एंड वोल्टेज के लिए। ओके, नाउ फॉर एनी पावर सिस्टम नॉर्मल एंड हेल्दी ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, ये बट ऑब्वियस चीज़ है कि भाई कोई भी पावर सिस्टम है उसके लिए आपको एक नॉर्मल एंड हेल्दी ऑपरेशन चाहिए, and what that's why the system has been operated for higher roots values of the receiving end voltage in the system। now if the system is operated for the lower range of voltage value, then there will be an undesirable small amount of current is flowing from sending end। अगर आपके सिस्टम जो जो आपका रेटिंग दिया हुआ है उससे लोअर वोल्ट रेंज के वोल्टेज पे अगर वो ऑपरेट करेगी तो सेंडिंग एंड से क्या होगा, देर इज अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सेंडिंग एंड। ओके, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम फिगर 3.12, दैट मीन्स हमने जो ये ग्राफ देखा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। फ्रॉम फिगर 3.12 we can say that a near flat voltage profile is achieved at unity power factor, that what I discussed too, that exactly it is given over here at unity power factor until the voltage magnitude does not reaches of the critical value। after the critical voltage value the system does not operate in normal condition। so this is the critical value guys, so this is the critical value, you can say this is the critical value। after once it reach the critical value the system you can see it is not operating normally, ये आप जीरो की तरफ अब वोल्टेज जा रहे हैं।
So it is the abnormal condition you can be consider over here. After reaching the critical value, it is system is not operating normally. Okay. Now the power factor value provides the control for receiving end voltage and also the critical receiving end voltage. Now the load with lagging power factor will reduce the receiving end voltage, and with the increase of power flow, the critical receiving end voltage also reduce. Okay, so similarly with lagging power factor क्या हो रहा है, will reduce the receiving end voltage. Low power factor का आपका receiving end voltage भी reduce हो रहा है. Okay, now while the power factor is leading, जो हमने बात की थी, the effect is reversal in the system, and if the power factor value of the load is leading, then it will generate reactive power in the system, which improves the line voltage in the system. Okay, now over here we can see some more graph that is given for some more graph for different length of transmission line. तो आपकी डिफरेंट लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये ग्राफ दिया गया है स्टूडेंट्स. सिमिलरली दोनों वही पैरामीटर्स कंसिडर किए किए गए हैं, आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज इन पीयू एंड रिसीविंग एंड पावर इन पीयू. ओके, सो हम पीयू में क्यों वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको इजी रहता है. ओके, सो नॉर्मली आप पीयू में जब वैल्यू लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द पीयू, दैट इज एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. सो सब भी आपका जो ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर, उसको सब भी में सब वैल्यू का आप पीयू में ट्रांसफर करके फिर आपका कैलकुलेशन करेंगे, तो दैट इज इजी फॉर द calculation. Okay, now over here we are considering this graph figure 3.13. That means this is the graph that is the voltage critical at unity factor. यहाँ पे unity power factor दिया गया है और ये critical voltage के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं. Okay, so now the below figure 3.13 and 3.14 shows the effect of transmission line length on the receiving end voltage and critical receiving end voltage. Okay, so now we can see over here for ये जो है हमने डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है, डेट इज 100, 200, 300, 400, वो क्या दिया गया है स्टूडेंट, वो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ दी गई है यहाँ पे. ओके, और डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन पे अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, तो फिर आपके ट्रांसमिशन लाइन पे आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज ये है वो उसकी क्या कंडीशंस है, और आपका रिसीविंग एंड पावर की क्या कंडीशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, सो वी कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडरिंग आप 100 किलोमीटर आपकी ये लाइन के लिए ग्राफ यहाँ पे दिया गया है. तो 100 किलोमीटर की यहाँ पे ये जो लेंथ है, यू कैन सी द लेंथ of 100 kilometer. This is the 100 kilometer transmission line and this graph shows the 100 kilometer transmission line. So यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 pu voltage आपका यहाँ से हो रहा है, that is the flat profile you will get, you can see at the 1 pu for the 100 kilometer transmission line. Okay, now we will see for the 200 kilometer. यहाँ पे 200 किलोमीटर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि 200 किलोमीटर में आपका वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. ओके स्टूडेंट, सो वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये 200 किलोमीटर की लाइन जा रही है, ये रही. नाउ फॉर फर्दर 300 किलोमीटर और थोड़ा सा ये वोल्टेज इंक्रीज हुआ, और ये 300 किलोमीटर की लाइन का ये कुछ वोल्टेज और पावर का ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा है. नाउ फर्दर 400 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर. सो इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई अगर यूनिटी पावर फैक्टर है, ओके, और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आप बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो भी आपका बढ़ रहा है. ओके, योर रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ऑल्सो इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ओके, फॉर नॉर्मल 100 to 200 किलोमीटर की लाइन पे इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप 500 किलोमीटर का ग्राफ देखेंगे, that it will shows that your voltage is increased too much with compared to the 200 kilometer line length of the transmission line. So ये कैसे होगा कि भाई जितना भी आपका ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ बढ़ेगा, आपका जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि देयर इज अ कैपेसिटिव इफेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिंग capacitors are present in the transmission line, and due to that effect, distributive capacitive effect, there is a increasing of voltage in the transmission line. ये यहाँ पे शो किया गया है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को नेचुरल लोडिंग कंडीशन का पॉइंट दिखाया गया कि भाई नेचुरल लोड पे आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का डिफरेंट लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है वो कैसे बिहेव कर रहा है. ओके,
So from this graph you can easily understood, and this graph is given for the unity power factor. Now we will see further the same thing that is given for the लैगिंग पावर फैक्टर. तो लैगिंग पावर फैक्टर में भी यही चीज दी गई है कि भाई लैगिंग पावर फैक्टर आपका रहेगा तो डिफरेंस क्या रहेगा कि वोल्टेज तो आपका बढ़ेगा ही. देखिए 500 किलोमीटर और कंपेयर कीजिए 100 किलोमीटर का. नाउ इफ यू कंपेयर 100 किलोमीटर and 500 kilometer length of line, you can see receiving end voltage is increasing with compared to the 100 to 200 kilometers line. Okay, and this is your natural line loading. This is also going to be change in terms of transmission line. So students, यहाँ पे critical voltage at 0.97 lagging power factor. Okay, so all the critical voltage is also going to be differ. So some of the statements given regarding that. So what are the statements they are given? For figure shows the effect at unity power factor. फिगर शोज 3.13 द इफेक्ट एट 0.97 लेगिंग फैक्टर. दोनों के ग्राफ में 3.12 में यूनिटी पावर फैक्टर के लिए दिया गया है और 3.13 में लेगिंग पावर फैक्टर के लिए दिया गया है. तो उसमें क्या दिया गया है कि भाई on the receiving end voltage and critical receiving end voltage be critical. Now from the simulation results and graph we can say that the uncompensated lines between 100 and 150 kilometer to 350 kilometer length can be operated within normal range with unity power factor. So 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की लाइन लेंथ जो है वो normally operated हो रही है at the unity power factor. And we can also see from the graph कि भाई 150 से 350 किलोमीटर की जो भी लाइन है तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वो नॉर्मली ऑपरेटेड हो रही है. ओके 150 से 300 किलोमीटर की जो लाइन है वो. ओके बट इफ इन अदर हैंड द ऑपरेशन ऑफ radial line is not feasible at common values of power factor and lower magnitude of critical voltage if there is the value of sending end and receiving end voltages are same. Then after at the natural loading the receiving end voltage is very sensitive to any load variation more than 300 kilometer line length, and due to that the possible solution of receiving end voltage from equation 49 are lower. That's why voltage stability issues are occurring in the radial line system. So student 100 to 300 kilometer के line length पे that is no issue, but if you increase the more than 300 kilometer line length so it will be a very sensitive point, and you can easily understood from this graph. So it will be rising like that. Okay, so students, I hope you can understood this theory very well through this explanation. And as I told you, it is a real and important question regarding to your GTU examination as well. So please prepare it very well. That is the operation of transmission line under heavy loading condition. Okay student, so for this lecture we will take up to this. Further section we will discuss in the next lecture. Okay, thank you very much. So students, finally as in every lecture, after completion of every lecture I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.